بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں۔ آج ایک ایسے موقع پر جب پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے 19 لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے عام معافی دے کر، اس پر بھی سوال ہوئے ہیں۔ آج پارلیمنٹ میں جب مذاکرات کے لیے جا رہے تھے، اب سے کچھ دیر پہلے، کچھ لمحے پہلے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر سب گئے ہیں، مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ اس میں سوال کیا گیا عام معافی کے حوالے سے، لیکن اس کو جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ کسی احسان کے طور پر نہیں دیکھ رہی۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر تو میں بعد میں آتا ہوں، لیکن جو لوگوں نے رہائی پانے والوں نے اپنا رد عمل دیا وہ بہت ہی حیران کن ہے۔ یعنی ایسا لگتا تھا کہ جب ان کو رہا کیا گیا ہے تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہوگا، انہیں بتایا گیا ہوگا کہ بھائی باہر جا کے کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے، باہر جا کے خاموشی اختیار کرنا۔ عام طور پر گھر والے بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ بھائی اب تمہیں رہائی مل رہی ہے، چپ کر کے گھر بیٹھو، خاموشی سے وقت گزارو اور بولو نا۔ عام طور پہ ہمارے سیاستدان بھی ایسے کرتے ہیں، جب چھوٹ کے آتے ہیں پھر گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے سیاستدان ہیں جو جب رہا ہو کر آئے تو اس کے بعد انہوں نے سیاست سے لاتعلقی کا ہی ایک طرح سے اظہار کر دیا۔ لیکن میں حیران ہوں کارکنوں کے اس رویے پر کہ وہ باہر آئے ہیں اور عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جس قدر جذباتی انداز میں لگا رہے ہیں، میں واقعی یہ بہت سارے لوگوں کے لیے حیران کن ہے۔ اب آپ دیکھیں آج پشاور سے جو 5-6 لوگ چھوٹے ہیں، ان میں سے ایک صاحب کا جو رد عمل ہے اپنی رہائی پر، وہ ذرا دیکھ لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ خان کا سپاہی نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ ڈرنے والا۔ دیکھو راضی کا تو یہ وہ مناظر ہیں، خان کا سپاہی نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، نہ ڈرنے والا۔ ایک رہائی پانے والا شخص یہ کہہ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ تو حیران کن ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ اور یہ تو چلے پشاور ہے، لاہور دیکھ لیں، لاہور میں کیسے لوگ نعرے لگاتے ہوئے باہر نکلے ہیں۔ لیڈر لیڈر ایک اشارہ، حاضر حاضر رہو ہمارا، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان کون۔ اچھا اب دیکھیں کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں اور عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ایک اور میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ جی ہمارے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ بلاول صاحب ہیں، یہ صنم جاوید ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے، اور وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ، حسان نیازی کے ساتھ، عباد کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیا غلطی کی ہم نے، کیا جرم کیا، ہمارا قصور کیا تھا، احتجاج ہی تو کیا تھا، ہمیں کیوں اندر ڈال دیا گیا۔ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سب کو کی سزائیں کالعدم قرار دی جانی چاہیے۔ ان کو بھی سن لیں ذرا۔ ہمیں بدترین ٹارچر کیا گیا۔ میں، میاں عباد، میاں اکرم، حسان نیازی اور جتنے میرے ساتھی ہیں، سب کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ ہمیں بنیادی حقوق نہیں دیے گئے۔ وہاں پہ ایک کھانے پینے کی چیز کے لیے منت ترلے کرنے پڑے۔ میں صرف اپنی عدالتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ یہ سزائیں پوری طور پہ کالعدم قرار کرے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے ان لوگوں کی، نہ کوئی توڑ پھوڑ، نہ کوئی جلاؤ گراؤ۔ اب میں 2 سال مجھے سلا دے کے رکھا آپ لوگوں نے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 سال میں کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ کیا میرے پاس کوئی ہتھیار تھا، کوئی اسلحہ تھا، کوئی جھنڈا تھا، کوئی ڈنڈا تھا؟ آئی واز ڈانسنگ ایٹ دا اسپورٹ، اور آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا، 20 مہینے مجھے رکھا، نظر بند رکھا، غیر انسانی سلوک کیا گیا میرے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، وقت یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، یہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو جواب دینا ہے، آج نہیں، کل نہیں، آنے والی نسلیں آپ سے سوال کریں گی اور آپ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ میں اپنی معزز عدالتوں سے حیران کن طور پر یہ باہر نکلے ہیں 2 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، وہ باہر نکل کے کہہ رہے ہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی رویے میں، کوئی تبدیلی نہیں آئی جذبوں میں۔ تو بڑا یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جذبہ بڑا حیران کن ہے۔ اسی طرح سے اور بھی ویژولز میں دیکھ رہا ہوں، جو لوگ رہا ہو کر نکلے ہیں وہ کیسے نعرے لگا رہے ہیں، کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی حیران کن طور پر رد عمل ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا، اور میرا خیال ہے خود جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو سرپرائز کیا ہے انہوں نے اس طرح سے۔
अच्छा, अब ذرا देखें जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, उमर अयूब साहब आए हैं, उनसे भी यही सवाल किया गया कि जी रिहाई हो गई है कारकुनों की। उमर अयूब साहब ने इसका क्या जवाब दिया है, और फिर उनसे 2-3 सवाल और भी किए गए हैं कि जी आम माफ़ी के अलावा कि और वो कह रहे हैं कि जी सज़ा ही गलत है तो ट्रायल ही नहीं हुआ, सज़ा ही गलत है तो फिर माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उन्होंने इंसानी हकूक़ की कमेटी का अडयाला जेल में जाना और इमरान खान से मुलाकात करने का जो प्लान, पिछली वीडियो में बात कर रहा था, मैंने कहा था कि डेट अभी नहीं आई, लेकिन वो आ गई है। 8 तारीख को इंसानी हकूक़ की कमेटी ने अडयाला जेल का विजिट करना है। तो इस पर क्या अपना रद्दमल दिया है उमर अयूब साहब ने, सुन लीजिए ज़रा। उमर अयूब साहब, आज 19 लोगों को आम माफ़ी दी गई है, इस पर मुस्बत पेशरफ्त समझते हैं? नहीं, उसका देखें, सबसे अहम चीज़ ये है कि हम लोग तो कहते हैं कि जो मिलिट्री ट्रायल्स के बाद और वो डिसीजन है वो ही गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में कैसे ट्राई कर सकते हैं? उनकी आधे से ज़्यादा सज़ाएँ हो चुकी हैं, आप वहाँ पे उनको सज़ाएँ दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं जी हम लोग माफ़ कर। नहीं, आप उसकी जड़ पे जाएं। जड़ ये है कि आपका ट्रायल ही गलत था, आपका उनको रखना गलत था। मिलिट्री आपका मिलिट्री कोर्ट, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 7 पढ़ें जिस पे लिखा हुआ है कि आपका स्टेट, आपकी स्टेट होती है जनाब, जो रियासत, वो नेशनल असेंबली, सेनेट, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी सूबाई हुकूमतें, आपकी सूबाई असेंबली, वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकती हैं। बाकी जितने आपके इंस्टीट्यूशन आप कह रहे हैं, बॉडीज़ कह लें, वो आर्म फोर्सेस है, रेंजर्स है, फायर ब्रिगेड है, वो आपके स्टेट के औजार होते हैं। तो 3 सतून है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, और उस पे आपका मिलिट्री जो है वो एक औजार है, वो जुडिशरी का काम नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स कमेटी ने आज फैसला किया 8 तारीख को अडयाला जेल जाने का। स्पीकर साहब से बात करेंगे कि इस हवाले से कोई रोड़े ना अटकाए जाएं। ह्यूमन राइट्स कमीशन के हमारे ह्यूमन राइट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं साहिबजादा हामिद रजा साहब, वो बड़े तकड़े और मजबूत चेयरमैन हैं और वो खुद मुख्तार कमेटी है और इंशाल्लाह वो खुद हैंडल करेंगे। हमारी ज़रूरत हुई तो स्पीकर असद कैसर साहब और मैं, हम लोग सेक्रेटरी जनरल भी आप रहे हैं। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जी वकला को करोड़ों या अरबों की मद में फीस अदा की गई, उसका ऑडिट होना चाहिए, इसके ऊपर क्या कहेंगे? कौन कह रहे हैं? सोशल मीडिया पे और वो पार्टी का सबसे पहली बात है, अरबों का कोई वो चीज़ नहीं है। सिर्फ एक प्रोफेशनल या 1 या 2 प्रोफेशनल वकला जो हैं उनको या उनकी प्रोफेशनल फीस अदा की गई है। बाकी सारे वकला इंक्लूडिंग सलमान अहमद राजा साहब वो ग्राटिस पे, यानी कि किसी फीस के बगैर हमारे ILF और बाकी लोग काम कर रहे हैं और किसी और को क्या तकलीफ है। अच्छा, असद कैसर साहब, एक ये आपसे उमर अयूब साहब बताइएगा, मुज़ाकरात के लिए आप कितनी उम्मीद है, आपके मुतालबात? देखिए, इस वक्त तो पता है कि अभी तो मीटिंग शुरू नहीं है और हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह PTI ने एक गुड जस्टिस दिया है और मुलाकात के लिए तैयार हुए हैं, अभी हुकूमत की बाल जो है हुकूमत की कोर्ट में है कि हुकूमत कितनी सी लेती है। वज़ीर आला शिरकत करें। पूरा मीडिया इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट हाउस में लगा हुआ है और पूरी नजरें हैं इस मुज़ाकराती कमेटी में, इस पर क्या निकलता है। असद कैसर साहब से भी लोगों ने सवाल किए हैं। असद कैसर साहब ने किन तवक्कुआत का इजहार किया, जरा ये भी आप देखें। सर क्या फैसला हुआ? सर हुकूमत मुतालबात 2 नहीं मानती तो कोई अगला अलाइनमेंट है? देखिए, लंबा ये मुलाकात होती है, 2 मुलाकात नहीं होती, काफ़ी हमारे पास टाइम है, हम देखेंगे, सुनेंगे, अपनी बात करेंगे। सर आज तहरीरी कुछ भी नहीं दिया जा रहा? हम आज उसके साथ प्रॉपर जो है ना अपना नुक्ता नज़र रखेंगे क्योंकि आप फॉर्मल मीटिंग है। सर खान साहब का कोई खास पैगाम भी है आज के लिए, आप कमेटी के लिए या हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के लिए? नहीं, वही है जो हमारा 2 मुतालबात है, रिलीज ऑफ आवर प्रिजनर्स और जो कमेटीज़ हैं उसके बारे में जो हमारा क्लियर मौके पे वही मौके पर। सर आप पूरी उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे? देखिए, हमेशा उम्मीद ही रखी जाती है ना। सर आज का खबर निकलेगी? निकलेगी आज, दुआ करें। इसके अलावा बैरिस्टर गौर साहब ने इस बात की तस्दीक की कि हम तहरीरी तौर पर कोई चीज़ हुकूमत के सामने नहीं रख रहे। कल मैंने इस पर तफसील से बात की थी कि तहरीरी तौर पर क्या मुतालबात रखे जाएंगे कि नहीं रखे जाएंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि वो PTI ये नहीं चाहती कि कल को कोई वो डॉक्यूमेंट लहरा के कहे कि देखो इन्होंने हमसे NRO मांगा था, इसलिए PTI तहरीरी तौर पर कुछ नहीं रख रही। हाँ, अपनी गुजारिशात, अपने मामला जो हैं वो अपने 2 जो उन मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने रखने जा रही है। बैरिस्टर गौर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। तो आप कितने पुर उम्मीद हैं और खान साहब ने दोबारा इससे पहले कोई हदायत जारी की हैं आपको?
नहीं देखो, हिदायत पहले से खान साहब की जारी शुदा है और ये आज एक बाज़ाब्ता पहली मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला और सारे मेंबरान हमारे शिरकत करेंगे। और हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 2 ही मुतालिबात रखे हैं, बड़े पॉजिटिव और जिनवन है कि रिहाई हो असीरान की और कमीशन का क़याम हो। तो आज इंशाअल्लाह इस पर बात होगी और हमें उम्मीद है कि हुकूमत अगर खुले दिल के साथ बैठेगी, निकनीति के साथ बैठेगी, तफसील से बात करेगी, सब चीज़ों से बालातर के पाकिस्तान के लिए सोचेगी, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा आउटकम आ जाएगा। सर, मुज़ाकरात के हवाले से आप उम्मीद हैं या अभी तक कोई शक व शुबहात में है खान साहब और पार्टी या अरकान जो है? देखिए, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, कोई कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए कि जो हम चाह रहे हैं ये समझता हूँ कि जी फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। सर बताइएगा, मुज़ाकरात जो आप करने जा रहे हैं वो आज जो मुआहिदा होगा आपका, उनके साथ जो आप अपने मुतालबात सामने रखेंगे, तहरीरी तौर पर लिखे? नहीं, देखो हमारे तहरीरी तौर पर कोई चीज़ नहीं है, ओरली उनको बताएंगे। 2 ही तो सिंपल मुतालिबात है, असीरान की रिहाई और कमीशन का क़याम। तो ये इतना कोई बड़ा और खान साहब की रिहाई नहीं शामिल इसमें? देखिए, असीरान है तो अगर असीरान है उसमें सारे आ जाते हैं, खान साहब तो बिल्कुल होंगे और टॉप ऑफ एजेंडा होंगे, लेकिन आगे देखते हैं कैसे चलता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस मौके पर सेनेटर अली जफर साहब ने भी मीडिया से बातचीत की है। तो अली जफर साहब कहते हैं कि जब अपनी नीयत शो करें मुज़ाकरात की है या नहीं, और उन्होंने कहा कि खान साहब हम पुरुमीद तो हैं लेकिन कोई बहुत ज़्यादा भी पुरुमीद नहीं है। यानी इमरान खान साहब के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ है तो क्या कहा है बैरिस्टर अली जफर ने, आप ये भी सुन लीजिए। कितने पुरुमीद हैं और आज खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से क्या हदायत दी हैं आपको? बड़ा वाज़ेह उन्होंने पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जहाँ तक हमारी डिमांड्स हैं, जो डिमांड्स पहले भी उन्होंने बताई थी कंडीशंस, वो उन्होंने कहा पूरी करें और फिर हम आगे मुज़ाकरात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात में हमारी टीम जो है वो यही रखेगी उनके सामने कि ये जो मुतालबात 2 हैं उनको मंजूर करें और अपना बोनाफाइडे दिखाएं, अपनी नीयत साफ़ है उनको उसको साबित करें। तो सर बताइएगा, खान साहब ने इस हवाले से कोई बात की है कि उनको जो ऑफ़र की गई थी कि आपको बनीगाला में हाउस अरेस्ट किया जाएगा और मुज़ाकरात फिर आगे जाएंगे? उन्होंने बताया कि उनको ऑफ़र की गई थी, लेकिन उनको वो कह रहे हैं कि अगर ये मैंने अकेले कोई अपने लिए मुतालबात ना कर रहा हूँ, ना मैं कोई डिमांड कर रहा हूँ, सबको छोड़ें तो फिर बेशक मुझे भी करें, लेकिन मैंने खुद अपना नहीं मानना कि मुझे बनीगाला बिठा दें। और खान साहब की सेहत के हवाले से बताएं, वो ठीक थे, बेहतरीन थे? और सर मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब भी पुरुमीद हैं या कुछ उनको शक व शुबहात हैं? अभी शक व शुबहात हैं, उनको शक व शुबहात हैं। वो कहते हैं कि ये भी ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो अपना प्रोसेस तो है जिसमें शामिल होना है, तो प्रोसेस में शामिल होना सर। तो ये जी अगले चंद घंटों में मेरा ख्याल है कुछ शायद हमारे सामने चीज़ें आएँ कि मुज़ाकरात में क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है, उस पर फिर हम तफसील से बात करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।